Thank you. Hello, everyone. Welcome to the ninth meeting of the Looking Glass and our very first online meeting. Our topic for today is the demand for Pakistan from idea to statehood. So we're going to learn today about how Pakistan went from simply an idea in people's minds to an actual state. We are pleased to have with us today Dr. Ishtiaq Ahmed, who is a renowned political scientist of Pakistani descent. Dr. Ishtiaq Ahmed, who holds a PhD in political science from Stockholm University and is currently a professor emeritus there as well. Dr. Ahmed has uncountable achievements under his belt. Among his other positions, he is also the editor in chief of the Liberal Arts and Social Sciences International Journal and serves as a member on editorial advisory boards of several journals as well. Dr. Ahmed has authored a number of books, his most recent one being Jinnah, His Successes, Failures, and Roles in History, which is available on Amazon and also at Vanguard Books in Lahore. It is in the context of his new book that Dr. Ahmed will speak to us about how Pakistan evolved from an idea to a state. And at the end of his talk, we will have a Q&A session with Dr. Ahmed. So without further ado, I would like to pass on the floor to Dr. Ishtiaq Ahmed so he can enlighten us. Thank you very much, Farba. Uh, Very kind of you to and Ehtisham to invite me. It's my very great pleasure and privilege to talk to you and your friends. Uh, well, let me say like this, that the normal format of anti-colonial struggles have been that a colonized people get together, organize themselves, and start demanding initially self-rule and then freedom from a colonial power. That's what you will find happening in the 18th century, actually 18th, 19th century in Latin America. Then in the 20th century in Asia and Africa, you find anti-colonial struggles against the French, against the Portuguese, against the Spanish, against the British, against the Dutch, you name them, and you find anti-colonial struggles emerging one after another. The reason was that already in the 18th century, the idea of nationalism was born. The basic assumption was that, I mean, this was a liberal idea that if individuals are capable of rational thinking, then a collection of individuals who share a common culture can collectively claim also the freedom to think rationally. And therefore, the nations all over the world are the natural units of the world order, and they deserve to have their own independent sovereign states. Decolonization started, I would say, that in the 20th century, the First World War led to the end of empires in Europe. The Ottoman Empire was dismembered, the German Empire was dismembered, and then the Austro-Hungarian Empire. All those empires who lost in the First World War ended up by losing their European, possessions. In the second phase, I mean, all this was based on the right of self-determination, which President Wilson of the US and Lenin of the Soviet Union both agreed on this, that colonized people have the right to be free. In the First World War, the British and the French and the rest ensured that their colonies in Asia and Africa were not affected. They said only the losing empires should be dismembered. Remember, this is important. But after the Second World War, then starts the decolonization of Asia and Africa. Now, coming to the Indian freedom struggle, I would say, and I would like to be challenged by anyone, nobody has done it thus far. The freedom struggle was always led by the Indian National Congress. So
if you look at the demand for Pakistan, which came much later, I would say in the 1930s, up until then, the struggle was the Congress trying to organize people against the British, I mean, in stages. And the Muslim League came into being in 1906, and it took a separatist stand on the freedom struggle, saying that we are not part of the, well, we are one community among others who live in India, but we have special interests, and therefore we should be guaranteed separate electorates, that Muslims would elect Muslims, and that Muslims, being an important martial type of people, placed in the northwest from where most of the attacks on India had come, deserved weightage. Weightage means more representation than your numbers. And the British granted it in 1906. So I would say that from 1909, from 1909 onwards, Muslim separatism is a movement which is existing beside the mainstream movement for the freedom of India led by the Indian National Congress. In 1929, in Lahore, where you are sitting, the Congress held its session where people came from all over India on the banks of the Ravi, and the demand for the complete independence of India was made. In 1996, December, I was in Calcutta, during one of the annual meetings of the Pakistan-India movement for peace and democracy. I mean, something of that sort was the name. And I met a very old man, Mr. Roy, who was almost blind. And he took my hand and started crying. He said, in 1929, I was in your city of Lahore, sitting, he was a Bengali, sitting there, and we all put our hands in the waters of the Ravi and pledged that we will struggle for the freedom of India. But this is 1929 Lahore. 1930, Allama Iqbal at Allahabad demands a separate state for Muslims in the northwestern part of the subcontinent. Now, I have argued in my Jinnah book that if you look at the number of people Iqbal's scheme included for a separate state, that was just 22% of the Indian population. The major population of Muslims was in Bengal. They were not included. Then Muslims spread all over India were not included. It was only Punjab and Sindh and these regions. After Iqbal, then comes the demand called Now or Never of Chaudhry Rahmat Ali. And Chaudhry Rahmat Ali wrote this pamphlet at Cambridge saying that we Pakistanis, I mean, this is the word he uses. Remember the word or the acronym Pakistan, P for Punjab, A for Afghania, which is northwest frontier, K for Kashmir, and Istan for Sindh and Bengal and Balochistan, is coined by Chaudhry Rahmat Ali, a Punjabi from Hoshiarpur. And so comes the demand, once again, like Iqbal, in the northwest, the same number of people, 25% of the Muslims were entitled to this state. About the rest, Chaudhry Rahmat Ali had the very strange idea that all Muslims should be grouped into small enclaves within India to be named after the holy figures of Islam, like Siddiqistan, Farooqistan, Usmanistan, Haidaristan, and I think for Bengal, he had Banglastan or whatever, and even as deep south as in the Sri Lanka, there was going to be a Muslim enclave. So the idea was that we shouldn't leave any Muslims in non-Muslim regions. There was going to be an exchange of population. Keep this in mind. On the other hand, within Hindu right-wingers, there was a demand that in a free India, the Muslims will always be a problem.
So let's push them west of the Indus. And those who are living in India should be converted to Islam, converted to Hinduism, which is a novel idea because Hinduism doesn't convert. But this is the 20th century where everything new was happening. Okay. But what stood in the way of Muslim separatism and Hindu right-wing communalism was the Indian National Congress. The Indian National Congress in 1928 adopted the Motilal Nehru report. If you go through it, it's very clear. There will be no state religion. There will be universal adult franchise. Men and women will have equal rights. And there will be a federation with a strong center, which I think makes a lot of sense for any political scientist. And I've argued in my Jinnah book that when Jinnah Sahib got Pakistan, he made Pakistan 100 times more centralized. Even today, the provinces outside Punjab are complaining that too much power belongs to the Punjab. So in 1928, the idea was very workable had they agreed to it, but they didn't. And I take no position. I'm saying this is history. I'm not here to preach a religious sermon. I'm just doing my duty to tell you how things happened. Okay, now we come to the 1935 Act of the British. In the new act, they expanded the right to vote. But still, the right to vote was limited to about 10-11% of the Indian population. So it was not everyone like you and me getting the right to vote, but people with property who paid revenue and tax, and people with education, which was a very small class. So in the 1935 Act, then there is an election held in 1937. Before the election, you find the Indian National Congress President Jawaharlal Nehru making a statement that in future India, we will abolish big zimidari, which is big landlord holdings, and we will recast India in the light of the Soviet model of socialist reconstruction. This is very clear. I've given this speech in the Jinnah book. And this rang alarm bells all over India among the landlords. And if you look at the class structure of the Muslim society and of the Hindu society, you will find a difference. The class structure supporting Congress and the class structure supporting the Muslim League were different. Muslim landlords, big and small, was a fact. And then you had the artisans and people with some education and working people. Among Hindus, there was a much bigger, educated, more economically advanced middle class of professionals. Among Muslims, a smaller class of professionals, because after all, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a professional, a lawyer. Liaquat Ali Khan, Sardar Abdur Rab Nishtar, all these were educated people. What we can say is that during the British period, the Sahib-e-Saif, people holding the sword, had become redundant. Sahib-e-Kalam, people who could write and read, became the leaders. So this is the big change introduced during the British. While the Congress demanded freedom for the whole of India, it went to the elections saying that this is how we will do it. The Muslim League had a similar program, but they were still sticking on to the Muslim separate electorates, that Muslims must have the right to have separate electorates. So this is where I think the difference came. And then there were elections in 1937. The Congress won very handsomely, but mainly in the Hindu majority provinces. And then very strangely, in the most Muslim province of all, Northwest Frontier Province, where you had the Khudai Khidmatgar of Khan Abdul Ghaffar Khan as an ally of the Congress. And remember one thing more. While the Congress leaders went to jail, I have calculated Jawaharlal Nehru was in jail from 11 to 13 years
depends on how you count. Mahatma Gandhi from 8 to 6 years. Then you have the same number of years for Maulana Abul Kalam Azad, Sardar Patel, and Kirpalani, and all others. They went to jail, protested British policies, and were punished. But the Muslim League never, even for 1 second, and when I say it, I mean it, ever got up and opposed the British in anything. Rather, they, from the time of Sir Syed, the wisdom was, do not join the Congress, be an ally of the British, and through the British get more and more concessions. So this was the triangular nature of the freedom struggle. You know, how can you call it anti-colonial? Because our struggle, the Muslim League struggle, was against the Congress, and we became allies of the British. That's the difference. So 1937, Congress does very well. The Muslim League, on the other hand, is routed in the Muslim majority provinces of the Northwest. Which were these? Of course, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, out of 84 reserved Muslim seats, I think they got only 2. In Sindh, out of, I think, 54 or some reserved Muslim seats, they got none. In Northwest Frontier, they got none. Balochistan at that time was not a province. And then you go to Bengal, there were 84 seats reserved for the Muslims. Sorry, in Punjab, it was 75 reserved, of which 73 were won by the Punjab Unionist Party. Now, the Punjab Unionist, let me say it like this. In the Muslim majority provinces, there were regional parties led by Muslims. In Khyber Pakhtunkhwa, Abdul Ghaffar Khan. In Punjab, it was Sir Fazle Hussain, and then he died in 36. Then Sir Skandar Hayat, he died in December 1942, and Sir Khizr Hayat Tiwana from that time onwards. In Sindh, you had Sir Hidayatullah Hussain and G.M. Sayyid and these people who were not very keen on Jinnah or on the Muslim League. They had their own Sindh National Party. Allah Baksh Sumru is another name to remember. And in Bengal, you had the Krishak Shramik Party of Qazi Fazlul Haq, and then a Muslim League faction. So in Bengal, out of 84 seats, 40 were won by the Muslim League and 44 by the Krishak Shramik Party, which was in opposition to the Muslim League. In the Hindu majority provinces, the Muslim League did rather well, not very well, but rather well. So that's the character of the Muslim League. Until 1937, it was a party of the Muslim elite of the Hindu majority provinces. The Muslim majority provinces were under regional leaders who wanted to keep the Muslim League out of their own domain. But then, because of Nehru's call to abolish landlordism and that socialism will be brought, not only the landlords were alarmed, but the British, who hated the Russians from 1833, you know, the great game started in 1883 when the British had not yet captured the whole of India. From that time onwards, they were sending people, agents into Central Asia against the Russians. After the Russian Revolution of 1917, this became 10 times more dangerous, the Russian threat, because they had communism as an ideology now coming along. So British were alarmed and the Muslim landlords class was alarmed. And Mr. Jinnah then, for those who benefit from Pakistan, it's Jinnah who has to be recognized as the great leader who came up and took up the challenge, because the Congress, after winning the election, said that there are only 2 powers in India, the British and the Congress. Jinnah Sahab said, no, there are 4 powers: the British, the Congress, the Muslim League, and the princely states, 565. So Jinnah Sahab diversified this. And then I have shown in my book, he told the governor of
Bombay that henceforth I will use communalism. What is communalism? Communalism that I love my community and I hate another community. What is communitarianism is I want my community's interest, but I also want the other communities to have their interests served. So Jinnah Sahab, who was a communitarian after he left Indian nationalism, in 1920, up until then he was a great Indian nationalist. Then he became a communitarian, and then he became now Muslim nationalist, demanding a separate state. So the separate state idea then is presented on the 22nd of March. People, if you look at the research done, they never mention the whole speech of Jinnah. I call it the foundational speech, where he emphasizes, underlines, underscores that under no circumstance can two nations, Hindus and Muslims, who have nothing in common, no sense of history, they don't dine together, they don't marry together, they don't have anything together. The heroes of one are the villains of the other. This is called dichotomization, the binary he created, saying that we want a separate states for Muslims. So from that time onwards, you have Muslim separatism emerging as a challenge to the Indian National Congress. What does the British do in these circumstances? I think, and I would quote Mr. Jinnah, he says, you see, the Second World War broke out in 1939, the 1st of September. On the 3rd of September, Viceroy Lord Linlithgow committed India to the war. And the Indian National Congress, which had ministries in 7 or 8 provinces, they said that we are not going to support this war, because if this is a struggle between fascism and the forces of freedom, how can we, a colony who is themselves a colony, struggle for the freedom of the free nations? You first make us free, and then we will take part in the war. Now, theoretically, philosophically, this makes a lot of sense. But politically, I think this was a major blunder. When I say this to the Indian colleagues, they are a bit nervous, because I point out where the Congress made major blunders. Had they said, okay, we'll support you in the war effort, but give us freedom afterwards, I think the British would not have divided India and left it the way they did. On the other hand, Jinnah Sahab goes to Linlithgow and says, look, if you want to confront the Congress, the only party who can do it for you is the Muslim League. And remember, all this, what I say, you can go and check the primary sources. So nothing in my book is of a nature which is based on hearsay. All this is direct Jinnah Sahab speaking. That is why up until now, nobody has gotten up and challenged my book. They may be complaining privately, but nobody has come out in the public and said, well, this is not correct. All this is verifiable. So Jinnah and Linlithgow form a front against the Congress. The Congress commits another major blunder, Quit India movement, telling the British, you leave now and we will fight, the freedom of India. And Lord Linlithgow then ordered the, police and the whatever to strike back. And the whole Congress leadership sat in jail from August 8th, 9th, 1942 till June 1945. For 3 years, the Congress was absent. It's during this period then Jinnah Sahab indefatigably, without resting, goes around and convinces the Muslims of all sorts that we need a Pakistan to save Islam from destruction in a united India and to save Muslims from total annihilation. Annihilation means the end of it. And all Muslims will be killed, things like this. So support Pakistan. A strong Pakistan will also guarantee the defense of Muslims in the outlying provinces, Hindu majority provinces. And somehow he was able to convince the Muslims, because in 1946, 45
election campaign, the ulama, the Brelvi ulama of Northwest, I mean, this Labbaik type people were there, brought back by Jinnah Sahab, and they went around pleading for Pakistan. Ka matlab kya? La ilaha illallah. I mean, my own cousin Mia Maqsood Ahmed is one of those, a young man who was shouting this, and many other slogans. Ke jo log, those who will not vote for Pakistan, their nikah will be annulled and they will be refused an Islamic burial if they died. Now you tell that to a Muslim, and that is real moral blackmail. So, and they were told that the Hindu moneylender will be gone. All these, opportunities for Muslims who were left behind will be multiplied, and which is true. Once the Hindus and Sikhs were gone, their businesses and so on was filled by the Muslims who up until then were educationally behind the Hindus. Of course, the landlord class who had patronized the Muslim League, it was in the UP, but now the focus had shifted to the Muslim majority provinces. So the landlord class of Punjab, Sindh and Frontier and the Baloch Sardars are the ones who benefited from the creation of Pakistan. So Pakistan then finally becomes, you have a vote from 494 reserved seats for Muslims, 440 coming to the Muslim League. So now the demand for Pakistan was a demand of the Muslims of the subcontinent. And then, of course, there are so many steps which I don't want to discuss in this process, where finally the 3 June partition plan comes in, and then the 18th July 1947 Indian Independence Act comes into being. It says that there will be 2 dominions, India and Pakistan, and the princely states can decide to join Pakistan or India or remain independent. Jinnah Sahab, of course, was supported by the British in all this, because the Congress opposed the British during the war. Jinnah Sahab helped recruit Muslim soldiers from all over India. This is all on record. So the British had a sense of, one can say, gratitude to Jinnah, and in the end they gave Jinnah a Pakistan, not the one he wanted. Now, that's interesting. Jinnah Sahab said that Hindus and Muslims are 2 nations, so separate Hindu India from Muslim India. So Muslim India becomes Muslim states, finally one Pakistan, and India remains India. But he wanted that the Muslim majority provinces of Bengal and Punjab should as a whole be given to Pakistan. This was confronted then by the Sikhs in Punjab, saying that if the Muslims can't live in a secular state where all Indians are citizens and they want a communal state for themselves, then we will resist being a part of such a Pakistan. We would demand a partition of Punjab. This was in 1940, 1 week after the Lahore Resolution. And the Congress on the 8th of March 1947, 7 years later, comes up with a resolution supporting the Sikh demand. But then the Hindu Mahasabha in Bengal says, if Punjab is going to be divided on the basis of religion and India, why not Bengal then? So Bengal was then, partitioned as well. So Jinnah got what he himself called as a moth-eaten Pakistan, without portions of West Bengal, which were Hindu majority, and portions of East Punjab, which were Hindu Sikh majority. So that's the Pakistan we got. One thing before I close this presentation. You see, while the British was supportive of Jinnah, within the British military establishment, there was a concern about this. And the concern was that a divided India means a divided British Indian army. The British Indian army, they thought, was the best guarantee for the freedom of India against external aggression, against Soviet, the Soviet Union coming to the subcontinent.
So if you divide India, you divide the British Indian Army. So on the 11th of May 1946, Field Marshal Auchinleck, the overall Supreme Commander, wrote a memorandum for and against Pakistan, and he said that if you create Pakistan, you run the risk of India then going towards the Soviet Union. And if that happens, our sea lanes all the way to New Zealand and Australia would be jeopardized. Huh? So we shouldn't do that. So no Pakistan. But by 12th of May 1947, 1 day later, the three heads of the British Armed Forces, the hero of the Second World War, Field Marshal Montgomery, and Lord Ismay and some people from the, I think, Colonial Office, they prepare a counter memorandum saying that no, Mr. Jinnah has showed an interest in remaining in the British Commonwealth, whereas Hindustan may go its own way and seek its own independent foreign policy. So a partition is good because Jinnah is going to join the Commonwealth. And there is a statement by Lieutenant General Sir Francis Tucker. You see, there were 4 commands in India: the Central Command, the Western Command, the Northern Command, and the Eastern Command. And he was head of the Eastern Command. He wrote a book before memory, while memory serves, where he says that we should create a Muslim state in northern Hindustan, which should connect an Islamic arch starting in Algeria into Arabia Deserta, into Turkey, Persia, and northern Hindustan. And it should be armed with Islamic ideology and British sciences. And then in this memorandum, they write, we should demand from Pakistan Karachi port facilities, Pakistan airfields, and Muslim manpower. Muslim manpower mean what? The Pakistan Army. And at the last moment, I call it the twilight decision of a movement away from keeping India united to a movement of partitioning India and creating a weaker Pakistan, which will always depend on the West to assert itself against India, was taken. And the Americans, by the way, who were the emerging power in the West, because, okay, the Second World War, the British won and the French, of course, but both had been destroyed by Hitler. So the emerging Western capitalist power was the Americans, and the Americans were against Pakistan. They thought that Pakistan once again would divide the British Indian Army, and it will be an invitation not so much to the Soviet Union, but to the Chinese communists who were being led by Mao Zedong, and Chinese communism will come to India. But the British decided to partition India, calculating that Pakistan would be a pro-Western nation. And the record is the British are extremely perceptive of reading the future, because after all, who did the Afghan jihad for the Western powers? Was it not our army and ISI? Do you think within a united India, anybody would have done it? A jihad? No. And Pakistan has either been, sometimes we have said that our dependence, our relations with, we are the most allied allies of the Americans. This is the 60s. Then we have become an ally of the Saudis against the Iranians during the Shia Sunni sort of terrorism which took place in the 1990s and so on. You know that. And then we are now in the Chinese lap. And China and India have a problem. So my enemy's enemy is my friend sort of logic works in this area. So to cut a very long story short, I think Pakistan, whether it came into being was good or bad is not an issue. It has come into being, and it can either now choose to find a peaceful way
of existing in this region. And my recommendation is make friends with India, because we are part of South Asia and this is forever. We don't need I mean, recently I've heard that Pakistan is going to allow Indian wheat to be transported to Afghanistan. Now that's very strange. If this wheat can travel from Pakistan into Afghanistan, why can't we trade between India and Pakistan? Because our economy is in a terrible shape. I think none of you can disagree with that. Be a friend of China, be a friend of the Americans. Why not be a friend of India? If India and Pakistan can join ranks and we have the SAARC framework, this region can become a region of peace and prosperity. And I tell you, Kashmir is not a problem. It's a symptom. The disease is this hatred created at the time of partition, when 1 million people were killed, 14-15 million people were uprooted. And those stories and those memories are still with us. Thank you very much. I have finished. Where is Farwa, yaar? Who's going to lead now? Farwa, please unmute yourself. No, somebody should do it. If not she, somebody should do it. I think she has an internet problem. So, sir, I have a question meanwhile. Yes, please go ahead. Go ahead. In 1893, the Durand Line was drawn, which separated the frontier province from Afghanistan, which previously used to be the part of Afghanistan for centuries. And the same people with, Pashtun people, they became part of what was British India. And within 50 years, then they were transferred to Pakistan. And as you correctly said, that Muslim League was the party of Muslim elite of Hindu dominant areas. And some people come to them and tell them that you are part of our country because we want a country for you, which they had no idea about. And their political composition was totally different. Like Baja Khan's party was pro-Congress. It was Congress. He was called Frontiers Gandhi. And Nehru came to my city in KBK, and Gandhi came also. So they were very active here. But then, after creation of Pakistan, how Pakistani state used this province for its own political games, and what I call Punjabistan, and what many call Punjabistan, because and it is true with all the provinces except Punjab. Yes. So can we say that it was in the recipe of this country to be that exclusive, or does it happen because of the policies of the later rulers? Of course, I'm saying that before Pakistan came into being, Jinnah Sahab has sent Mr. Isfahani to the Americans, telling them, look, we as Muslims can serve your interest in the Middle East, where the oil was located, and to keep the Soviets out of the subcontinent, because we are a monotheistic Islamic country. So Pakistan itself went to the Americans. The Americans till 1951 didn't even pay attention to the Pakistani pleas. We went and became part. We sat in their lap, अगर कहना चाहिए. उनकी गोद में हम जाके बैठे हैं, and not the other way around. हमारे जो कम्युनिस्ट हैं ये वो इन्होंने ना कभी पढ़ाई लिखाई की है कि जी अमेरिकन्स ने पाकिस्तान क्रिएट कराया. वो बिल्कुल बकवास है. The Americans were opposed to the creation of Pakistan because they thought चाइनीज कम्युनिज्म यहां आ जाएगा अगर इंडिया डिवाइड हो जाएगा. है ब्रिटिश का जो बग बेर है ना, डर, वो सोवियत यूनियन था. दोनों में ये फर्क है ना. मगर ब्रिटिश तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद ही तबाह हो गए ना. उनकी तो तनख्वाहें अमेरिकन दे रहे थे बेटा. सो द अमेरिकन देन टुक देयर टाइम बिफोर दे एक्सेप्टेड पाकिस्तान प्लीज. और ये डूरेंट लाइन, ये वो, बाय द वे मुझे किसी ने बताया, ये चेक कर लें कि ये अफगान लीडर्स के कहने पे ड्रॉ हुई थी. सो देयर इज वन ट्विस्ट. द अफगान्स वांटेड दिस डूरेंट लाइन एज अ लाइन ऑफ कंट्रोल ताकि ब्रिटिश आगे ना बढ़ सके. अब उसका बाद में कैरेक्टर ये बन गया कि पख्तून्स आर डिवाइडेड ऑन बोथ साइड्स. मेरी अपनी प्ली ये है कि ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया का भी परमानेंट कर दो. ये लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बिकम इंटरनेशनल बॉर्डर,
और उसके बाद बॉर्डर रिलैक्स कर दो, कश्मीरी आए जाएं, पंजाबी आए जाएं, व्हाई नॉट यार। सारी दुनिया में जंगें करने के बाद फाइनली तो यूरोपियन यूनियन का ही मॉडल चल रहा है ना। और यही आप पख्तून तो आते ही रहेंगे, सदियों से आते रहे हैं। जब सर्दी पड़ती थी तो वो क्या थे यार, वो उन्हें मोमिंद कहते हैं या क्या, वो उतर आते थे। ये अफगान जो अटैक करते रहे हैं वो गर्मियों में तो नहीं थे आते, सर्दियों में आते थे, हमला करके चले जाते थे। तो अफगानिस्तान का और इस सब कॉन्टिनेंट का तो बड़ा पुराना रिश्ता है। हमलों का ही रिश्ता भी नहीं है, दोस्ती का रिश्ता भी है। तो अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल इधर भी कर दें, परमानेंट बॉर्डर, और उधर भी अफगान्स को मना लें, तो दोनों का फायदा है इसमें। और उन बॉर्डर्स को आप रिलैक्स कर दें। बॉर्डर्स वही हैं जो आपके जहन में होते हैं। सारे यूरोप के अंदर बॉर्डर्स तो है ना, ये डेनमार्क है, ये स्वीडन है, ये पोर्चुगल है, ये ऑस्ट्रिया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो सिटीजन है वो स्टॉकहोम से बैठ के तो सारा ट्रैवल फ्रीली करके कहीं और जा सकता है। तो यही अगर हम इस इलाके में कर दें तो क्या चाहिए और, बजाय ये मिसाइल्स बनाने के और ये आर्मीज को फीड करने के और 10-10 दिन की जंगें करवा के कई सालों तक फॉरेन डेट अपने ऊपर बिठा लेनी। यही पाकिस्तान का कैरेक्टर है ना। कारगिल कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। उधर इंडियंस ने सियाचिन में अच्छा भला एक समझौता हो रहा था, उसको वहां के लोगों ने सैबोटाज कर दिया। तो इस इलाके में अक्ल की जरूरत है, फोरसाइट की जरूरत है। यू मस्ट बिलीव इन पीस एंड यू मस्ट बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सारे हिंदुस्तान में जो गुर्बत है और जो पाकिस्तान में गुर्बत है, लानत है उनके ऊपर जो इन चीजों को एक साइड पे रख के तो लोगों को लड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड में पाकिस्तान इज द मेन बेनिफिशियरी। आप कोई चीज तो पैदा करें जो दुनिया में बिक सके। आप अच्छे भले इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, वो भी चाइनीज आपसे ले गए। हाँ जी, फुटबॉल आप बनाते थे, सुना है वो भी हमारे से जा रहा है। तो आप तो बिल्कुल कॉलोनाइज दोबारा हो रहे हैं यार, कोई अकल करो। चीन ਤੁਹਾਡੇ मामे लगते ने यार, मैंने समझाओ तो सही। वाई ऑल दिस? ठीक है, चाइना के साथ गुड रिलेशंस, वी नीड दैट, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। इंडिया के साथ भी हैव गुड रिलेशंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। एवरी नेशन इज एंटाइटल्ड टू नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। हम ये सोचते ही नहीं है। हम इंडिया की दुश्मनी में हर एक से अक मटका कर लेते हैं, हमारा ये हाल है। और कोई अगला सवाल करो यार। Acha, anyone can ask their question. They can raise their hand and I'll unmute them or ask to unmute them. आप लोगों के questions. अच्छा, शहीर, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के हवाले से। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कहना किस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की आईनी जद्दोजहद के तहत वजूद में आया। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा, मेरा ये सर इश्तियाक साहब से क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि ब्रिटिश ने पाकिस्तान को बनाया, इंडिया को पार्टीशन किया अपने एक गेम प्लान के तहत, तो फिर पाकिस्तान अमेरिका के इन्फ्लुएंस में, अमेरिका के ऑर्बिट में कैसे चला गया? एक इस पहले दूसरे सवाल का जवाब सुन लो ना, कि ब्रिटिश ने बनाया था ये सोच के कि जंग के बाद भी वो एक ग्रेट पावर रहेंगे विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत तो ली उन्होंने, लेकिन अगर आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री का पता है तो लंदन को डिस्ट्रॉय कर दिया, शेफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैनचेस्टर को। ब्रिटिश इंडस्ट्री तो जीरो थी और उनके तो फूड राशनिंग थी बेटा। सारी तनख्वाहें ब्रिटिश आर्मी की जो है अमेरिकन पे कर रहे थे, एंड द ब्रिटिश वर कंप्लीटली नेक डीप in debt to the Americans, and Americans took all the influence from the British. तो जनाब जो पाकिस्तान है वो कोई बेवकूफों ने तो नहीं ना बनाया, उन्हें पता था द ब्रिटिश आर अ स्पेंड फोर्स, वी शुड नाउ गो एंड नॉक एट द डोर ऑफ द अमेरिकन्स। ये पहले का आपके सेकंड चीज का मैंने जवाब दे दिया है। पहली बात ये है कि ये बिल्कुल गलत है।
जिन्ना साहब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को खुद ही डिनाई कर देते हैं ऑन 29 जुलाई 1946। मेरी जिनाली किताब में पढ़ लो, वे ही सेज कि अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इस्तेमाल करते रहे हैं, but now we are holding a gun in our hand and we can use it and we can use it. और उसके बाद 16th अगस्त 1946 को कलकत्ता के अंदर द ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुई है बेटा। कोई 4 से 10 हजार लोग मारे गए कम्युनल राइटिंग में। और उसके बाद बिहार के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, नोआखाली में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बॉम्बे में हिंदुओं और मुसलमानों का कत्ल हुआ, मुसलमानों का ज्यादा हुआ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हजारा प्रोविंस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदुओं को इन्होंने गाजर मूली की तरह मार दिया। और फिर पंजाब में मार्च 1947 से लेके जुलाई 1947 तक, इन महीनों में मुस्लिम रावलपिंडी और मुल्तान और लाहौर इसके इलाके में हिंदुओं पे और सिखों पे अटैक होते रहे। जुलाई के बाद फिर उधर से सिखों ने और हिंदुओं ने मुसलमानों पे अटैक किया। और अल्टीमेटली ये जो पार्टीशन है, जो जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान बनाओ, 1 million people at least, Hindus, Muslims and Sikhs were killed. 14 to 15 million people, the greatest migration ever in history took place. पंजाब का सुन लो, सारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन उस जमाने में नियरली 400 मिलियन थी, तो उसमें 1 मिलियन मारे गए और 14-15 मिलियन मूव किए। पंजाब की उस जमाने में प्रिंसली स्टेट्स मिला के पंजाब की पॉपुलेशन थी 34 मिलियन। 34 मिलियन में 8 लाख लोग मारे गए। आई थिंक 500,000 मुस्लिम्स एंड 300,000 हिंदूज एंड सिख्स हमारी तरफ। हाँ जी, और 8 लाख, हाँ 8 लाख लोग मारे गए। 10 मिलियन पंजाबियों ने अपना घर, अपने गांव गूं छोड़ के तो बॉर्डर क्रॉस किया। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, तो कौन कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान लिया गया है? ये इतनी बकवास है कि यानी ये मेरी सारी किताबें हैं, ये सब झूठ बोलते हैं यार। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स were given up by Jinnah by his own statement 29 जुलाई 1946। पढ़ लो जाके, जिन्ना साहब की कलेक्शन ऑफ स्पीचेस में भी वो हैं जहां से मैंने लिया है कि अप अंटिल नाउ वी वर यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल methods, now we are holding a gun in our hand and we will use it, we can use it। तो यूज हुआ। फिर 16th देखे 16th अगस्त को जो हुआ है ना कलकत्ता में अटैक, उससे पहले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग ढाका कलकत्ता, हाँ कलकत्ता का एक बयान है, अखबार में छपा था, न्यू स्टार में मेरे ख्याल से, कि देखो ये जो 16th अगस्त की जिन्ना साहब की कॉल है ना फॉर डायरेक्ट एक्शन, हाँ जी, ये याद रखो कि इसी महीने में जंग बदर हुई थी, इसी महीने में कुरान शरीफ रिफ्यू अपना नाजिल हुआ था, और इसी महीने में रसूलुल्लाह जो है मक्के में एंटर किए गए थे। यानी ये फतह का महीना है, लिहाजा आप जिहाद कर दो। ये मैंने पूरा कोट किया है। तो ये अब कहाँ भाग के जाएंगे ये बातें करके। हुआ ये है कि पंजाब के अंदर भी और सारे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा मुसलमान मरवा दिए इन्होंने। हिंदू सिख मारे गए हैं, लेकिन ज्यादा मुसलमान, अगर बॉडी काउंट किया जाए तो मुझे लगता है मुसलमान ज्यादा मरे हैं। पंजाब में 500,000 मुसलमान मारे गए, उधर हमारे यहाँ 300,000 हिंदू सिख वेस्ट पंजाब में मारे गए हैं। और फिर बाकी मेरठ ये वो वहां पे भी अटैक होते रहे। हाँ, हिंदुओं को यहाँ से पूरे भगा दिया, सिखों को भगा दिया, सबको बेचारों को जाना पड़ा। फिर भी कांग्रेस ने जो मुसलमान 47 में रह गए थे 9.8%, वो उन्होंने उन पे हमले नहीं किए, और वो आजकल 14.2% हो चुके हैं। जो कि हिंदू राइट विंग कहते रहते हैं जी ये कि मुसलमान पता नहीं कितने सालों में ये तो डोमिनेट कर जाएंगे, वो बकवास है सारी। लेकिन कांग्रेस ने तो वहां के मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया ना, हमने कहाँ किया। अगर हिंदू सिख हमारी तरफ रह जाते वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, तो 21% पॉपुलेशन हिंदुओं और सिखों की होनी थी। अब कितनी है? 1.6% है। और ये कब हो गई थी?
दिसंबर 1947 में। तो वेयर इज द पीस भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है ये? नो, दिस इज गुंडागर्दी, टोटल गुंडागर्दी। हु स्टार्टेड, हु डिड, सारा रिकॉर्ड है, मेरी पंजाब पार्टीशन की किताब भी देख लो, उसके ऊपर 2 नेशनल अवार्ड पाकिस्तान से मिले हैं, कराची लिटरेचर फेस्टिवल और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में, पंजाब वाली पार्टीशन पे, वो भी आप लोग पढ़े ना। बिकॉज आई डू रिसर्च इन अ वेरी इंडिपेंडेंट मैनर, और मैं ये है ना लॉबीज हैं, आई डोंट केयर फॉर देम। तो नो, नॉट एट ऑल। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंडेड व्हेन जिन्ना गेव द डायरेक्ट एक्शन कॉल ऑन द 29th ऑफ जुलाई है यार, वो यानी डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन द होल स्पीच इज कोटेड देयर, और जाके आप ओरिजिनल में देख भी लें, बात खत्म हो गई। अगला सवाल। Kumail, please unmute yourself. Assalamu alaikum. Can you guys hear me? वालेकुम सलाम जी। अच्छा, सर मेरा सवाल आपसे ये था कि डू यू थिंक के जो हमारी मुस्लिम लीग की डिमांड्स थी बिफोर द पार्टीशन, that they could have been met in a manner without the partition happening, or did the Hindu nationalist movement make it impossible for us to continue in a united India? नहीं, नॉट एट ऑल। द कांग्रेस वाज प्लीडिंग ऑन इट्स नीज, प्लीज पार्टीशन ना करो। हम हिंदू स्टेट तो रास्ता बना ही नहीं रहे, हम तो एक सेकुलर स्टेट बना रहे हैं। 1928 में मैंने बताया है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी है, आज तक है। इंडिया इज नॉट अ हिंदू स्टेट, इट्स अ सेकुलर स्टेट। आपने क्या किया है कि मुसलमानों की 2 पहले डिविजन करवाई हैं, फिर तीसरी करवा दी क्योंकि बंगालियों को आपने अच्छा ट्रीट नहीं किया। हाँ जी, तो पार्टीशन इज द पार्टीशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और अगर आप इस्लाम के हवाले से भी देखें, जमीयत उलमा हिंद के जो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, वो उनका क्या मौकफ था कि इस्लाम की दावत तो यूनिवर्सल है। आप ये जब पार्टीशन करेंगे, एक तो आप अपने सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये अब्दुल कलाम आजाद का भी बयान है, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो सदर थे जमीयत उल उलमा, उन्होंने कहा कि आपके अपने सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स आगे आ गए। और वही हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पहले हिंदू सिख भगा दिए, बाद में अहमदी गैर मुस्लिम करार दे दिए, फिर शिया सुन्नी टेररिज्म कितनी देर तक होती रही है, फिर देवबंदी और बरेलवियों ने एक दूसरे के साथ टेररिज्म नहीं की। और ये लब्बैक वाले क्या करते हैं? अब यहाँ पे कोई हिंदू है, कोई सिख है, आप अपने लोगों को नहीं छोड़ते यार। तो ये सब नॉनसेंस है, ये जो बातें हैं सारी। हाँ, कांग्रेस ने हिंदू राइट विंग को कॉर्नर किया था। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस को बैन भी कर दिया था, और बैन तब हटाया जब उन्होंने कहा कि आज के बाद नो, वी विल नॉट यूज ये फोर्स। आरएसएस नहीं, हिंदू महासभा, जिसका वो मेंबर था, ये क्या नाम था उसका यार, गॉडसे, उसको बैन कर दिया था। और महल शायद आरएसएस पे भी पाबंदियां लगाई थी। वो उन्होंने कहा कि तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानो तो तुमको हम दोबारा फ्रीडम देते हैं। तो हमारे यहाँ तो जब चाहे किसी प्रोफेसर को कत्ल कर देते हैं। वो मिसाल खान बेचारे को मार दिया, और किसी हर रोज मैं तो खबर सुनता रहता हूँ। एक हमारा प्रोफेसर अंग्रेजी का, पता नहीं 6 साल से मुल्तान में उसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगाए हुए। अब यहाँ पे कौन सा हिंदू है, कौन सा सिख है जिसका आपको डर है? आप तो अपने लोगों को नहीं इंसान की तरह ट्रीट कर रहे। हिंदू राइट विंग अलबत्ता उसने फायदा इन सारी चीजों का उठाया है, और वहां पे कहा है कि देख लो, ये मुसलमान जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, आप हमें सपोर्ट करें। तो अब हिंदू लॉबी वहां पे स्ट्रांग है। लेकिन ना ये कांग्रेस का था। और अगर मुसलमान इतने रहते, आपको पता है इंडियन आर्मी के अंदर मुस्लिम परसेंटेज 1947 सारे हिंदुस्तान में 25% थी, अबाउट 25%। लेकिन आर्मी के अंदर ये 38 से 42% थे, और पुलिस के अंदर ओवर रिप्रेजेंटेड थे। और नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कंसंट्रेशन थी मुसलमानों की। तो अगर कोई चाहे भी इसको हिंदू स्टेट बनाना तो नहीं बना सकता।
जिसमें इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की फौज में होगी और पुलिस में होगी, वहां पे कोई पागल है वहां पे हिंदू स्टेट बनाएगा? और कांग्रेस तो हिंदू स्टेट बनाई नहीं थी रही भाई, वो तो सेकुलर स्टेट बनाई थी उन्होंने, और उसमें हमारा पूरा हिस्सा था। अगर आपने नहीं माना और पाकिस्तान बना लिया तो मुबारक हो, ठीक है, हिस्ट्री में कई फैसले होते हैं एंड वी हैव टू लिव विद देम, सिंपल एज दैट। सो आई एम नॉट प्लेडिंग कि हम दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, नो नो। मैं कहता हूँ यूरोपियन यूनियन बना लो, पाकिस्तान पाकिस्तान रहे, इंडिया इंडिया रहे, बांग्लादेश बांग्लादेश रहे, श्रीलंका श्रीलंका रहे, नेपाल रहे। व्हाई कांट वी ऑल कोऑपरेट यार? बात खत्म कर दो। हाँ जी, आई होप Hiram आई has a आंसर्ड question. योर कंसर्न्स। हाँ, अगला सवाल। वो Hiram, इरम please गुल का unmute. हाथ, इरम गुल साजिद ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आई सी इट। जी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्टीशन ने मुसलमान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बरसगीर में, लेकिन सर Okay. जब हम कांग्रेस मिनिस्ट्री और उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट्स और शरीफ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो फिर वो तो फिर हमें और ही सूरत हाल दिखा रही होती हैं, तो सर उसका क्या करें फिर? वो क्योंकि Thank you. बकवास है ना, इसीलिए मैंने कहा जिन्ना की किताब बेटा पढ़ लो। एक तो आप लोग पैसे नहीं खर्चते किताब पढ़ने के लिए, कहते हो मैं उसका क्या करूं? आई हैव शोन के वो सब बकवास है। देखे जितने जो क्या कहते हैं यार, यूपी का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मध्य प्रदेश का गवर्नर, इन सारों की रिपोर्ट्स हैं और देवर वेरी मच अगेंस्ट द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस चाह रही थी ना कि अंग्रेज जाएं, मुसलमानों ने तो कभी कहा ही नहीं था कि आप जाएं। तो उन्होंने भी लिखा है कि ये सारी बकवास है, कोई कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी। बल्कि मैं आपको ये मिसाल दूं कि जब अभी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इंस्टॉल नहीं थी हुई तो महात्मा गांधी को बिहार में बुलाया गया और बिहार की कांग्रेस ने कहा कि आप हमें बताएं कि हम किस किस्म की हुकूमत यहाँ पे कायम करें। उन्होंने कहा देखो ये कृष्णा और राम जो हैं ये हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं है, इसलिए मैं उनकी मिसाल नहीं दे रहा। रसूल अल्लाह की, हजरत अबू बकर की और हजरत उमर की जो मिसाल है, मिसाली रूलर्स की, कि उन्होंने सादा जिंदगी गुजारी, सारी दुनिया पे हुक्मरानी भी की, लेकिन in an ethical manner. ये this is what Gandhi is saying. तो follow Abu Bakr, Umar and the Prophet. ये महात्मा गांधी is giving such lessons. ये बकवास करते हैं सारे। पीरपुर रिपोर्ट के, अच्छा देखो उस जमाने में वाइसरॉय वाज लॉर्ड लिनलिथगो एंड लिनलिथगो हेटेड द कांग्रेस हु वांटेड कि पावर ट्रांसफर की जाए, इंडिया को फ्री किया जाए। द ब्रिटिश वांटेड कि इंडियन आर्मी में जिन्ना साहब सोल्जर्स रिक्रूट कराएं। तो वो भी उसने लिखा है कि आई एम टेलिंग जिन्ना दैट ऑल दीज accusations have no substance at all. So even the viceroy who was anti-Congress and the governors of these provinces, they all agree कि कोई कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी कि वो मुसलमानों को टारगेट करे। तो ये सब झूठी रिपोर्ट्स हैं। फर्क क्या यार होता ये है कि लीडरशिप एक टॉप पे होती है ना, जो आम मोहल्ले में होता है, यहाँ पे नहीं होता। पीटीआई और पीएमएल के वर्कर्स नहीं लड़ पड़ते। तो ये जरूर हुआ होगा कि एक दूसरे के साथ कुछ झगड़े लोकली हो गए होंगे, लेकिन कांग्रेस की कभी पॉलिसी नहीं थी कि मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जाए। उसका ये बिल्कुल रबिश है। ये रिपोर्टें तो लिखी गई और मुसलमानों ने इन पे यकीन भी किया। ये तो बात सही है कि यकीन किया, लेकिन द फैक्ट्स आर कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। हाँ, लोकल कुछ छोटे मोटे, अब एक पूरी कांग्रेस के अंदर कोई एक तस्सुब वाला एक वर्कर भी तो हो सकता है ना, व्हाई नॉट? हमारे में नहीं होता। अभी पुलिस हमारी को मार दिया इन्होंने, लव बैक वालों ने, तो ये कहां से आप जस्टिफाई करेंगे? ये इस लेवल पे इस किस्म के इंसिडेंट हुए होंगे, बट कोई कांग्रेस का ऐसा प्रोग्राम नहीं था।
और मेरी किताब पढ़ लो, उसके बाद ये सब चुप क्यों है? वो इसीलिए चुप है कि इनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। हाँ जी, अगला सवाल। Shamsur Rahman has a question. Ji, Assalamu alaikum everyone, and thank you, Professor, for doing this. मैंने काफी late join किया था, but I have just one question. ये एक book मैंने पढ़ी थी, which was about which was from the Narendra Singh, who was a young staffer to the जो सरीला, आखिरी- मिस्टर सरीला, नरेंद्र सिंह सरीला, Oh, yeah, एडीसी, yeah, exactly. एडीसी Okay, टू yeah, माउंटबेटन। exactly. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yeah, exactly. He was and बाद में वो he was a successful diplomat इंडिया का। तो उनकी जो बुक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, तो जी वो जी बता रहे कि ये सब के सब ऑलरेडी प्लान था, और जो इवन जो पंजाब का जो पार्टीशन था वो भी ऑलरेडी मतलब जो रेड क्लिफ था उनको पहले से मतलब बाद में उनको डॉक्यूमेंट्स दे दी गई कि आपने एग्जैक्टली यही करना है और ये ऑलरेडी डिसाइडेड हुआ है। तो जस्ट आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन कि उसमें कितनी सच्चाई है, और आपने डेफिनेटली बुक भी पढ़ा हुआ हो। नहीं, सरीला की बुक को तो मैंने विद ग्रेट एडमिरेशन अपनी किताब में एज अ स्टैंडर्ड बुक के तौर पे रिव्यू किया है। सो जो उसने अपनी क्लेम्स की हैं वो जेन्युइन है। ओके। लेकिन मैंने तो और भी डिटेल्स दी हैं ना डॉक्यूमेंट्स के, ब्रिटिश पॉलिसीज के। पूरा एक चैप्टर है द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया, हाउ दिस आइडिया ग्रू एंड ऑल। वो यार जिन वाली किताब पढ़ लो, ऐसे करो सारे पैसे डाल के ना एक किताब ले लो और सब पढ़ते रहो उसको, अगर आप पैसे नहीं खर्च सकते। सर आपकी फ्री कॉपी अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, नो, आई थिंक दिस इज एन इंसल्ट टू एन ऑथर जिसने इतने साल मेहनत की हो, तो उसके साथ फ्री कॉपियां लेनी है। हाँ, मेरे नहीं सर, स्वीडन में आ जाओ तो तुम्हें मैं डिनर डूनर करा देता हूँ। वो क्या कहते हैं, मेजबानी करना एक अपनी हमारा कल्चर है, लेकिन मुफ्त किताबें लेना तो चोरी है। सर आपके इधर आयरलैंड में अवेलेबल है, मतलब यूरोप में अवेलेबल है? यार ट्राई करो ना, अमेज़न में करो। देखो वैनगार्ड वाले online, जो हैं okay. वो वैनगार्ड वाले पोस्टल खर्चा और किताब का लेके आपके घर पहुंचा देते हैं, हर जगह पे जा रही है किताब। मुझसे ना पूछो किताब कैसे ऑर्डर करते हैं, आप ज्यादा ये टेक्नोलॉजी मुझसे बेहतर जानते हैं। अगला सवाल यार, अगला सवाल। किसी और ने कोई सवाल पूछना है, वरना मेरा एक और सवाल है। अच्छा, किसने हैंड रेज किया? हु इज दिस? शहरियार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं आपसे। एक तो मतलब जो हिस्ट्री की जो सिचुएशन थी वो तो मतलब चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसमें एक बात ये भी कहीं पे इंडियन एक कांग्रेस लीडर था जिसने कोई बुक में कही थी कि जो उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा था कि जी हम कश्मीर एक्सचेंज कर लेते हैं पाकिस्तान से अगेंस्ट जूनागढ़ और हैदराबाद के लिए। तो जी, जी। दूसरा सर मतलब क्राइसिस उसमें काफी हद तक मैनेज हो सकता था, जो आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात सर, जो बलूचिस्तान को आप देख लें, जैसे ही इंडिपेंडेंस 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद से जो वहां पे उस टाइम से जो क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं वो अभी तक चल रहे हैं उसी पैटर्न में। ऑल्दो वहां पे भी वही फ्यूडल्स हैं जो जिनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग, और थोड़ी बहुत नेशनलिज्म है, लेकिन वहां की वजह से इतनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए, जैसे आपकी आरसीडी हो गई, ट्रेड ईरान के साथ और आगे सेंट्रल एशिया के साथ, तो वो क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा है? चले, अच्छा, अब मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा, वो तो हमारे नलायक अगर लीडर्स होंगे तो नहीं होगा मैनेज। लेकिन बड़ा अच्छा है आपने ये भी सवाल किया है कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या सिलसिला था। देखो यार बात सुनो, 1935 एक्ट में अंग्रेजों ने जो शरारत की थी वो ये थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी और एक फेडरल गवर्नमेंट होगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट तभी इन ऑपरेशन आएगी इफ ऑल द प्रिंसली स्टेट्स एंड द पॉपुलेशंस एग्री टू जॉइन द फेडरेशन। वो तो कभी प्रिंसलीज ने करनी नहीं थी, तो अंग्रेजों ने उनको तो अपने साइड पे कर दिया ना, ताकि ये बात ही ना आगे बढ़े। इलेक्शन जो हुए 1937 में वो सिर्फ प्रोविंसेस के हुए थे, फेडरल इलेक्शन तो हुए ही नहीं।
45 में फिर उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के करा दिए, बिकॉज इट वाज नाउ क्लियर कि द ब्रिटिश वर लीविंग इंडिया। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर लीविंग, ठीक है, बट नॉट एट दैट टाइम। सो 3 जून 1947 की जो पार्टीशन प्लान है ना, उसमें है कि द प्रिंसली स्टेट्स पैरामाउंटसी, पैरामाउंटसी क्या होता है, ब्रिटेन वाज द पैरामाउंट पावर, उसके नीचे अंडर ट्रीटी all these hundreds of princely states existed, and then they were directly administered provinces. Punjab हो गया, Sindh हो गया, ये सारे directly administered by the British, and then princely states. So the princely states would have the right to reach an agreement with either Hindustan or Pakistan or remain independent. यही फिर आइडिया को उन्होंने 18 जुलाई 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की क्लॉज नंबर 7 में भी यही लिख दिया है, रिपीट किया है। अब हुआ क्या कि 1938 ऑनवर्ड्स कांग्रेस का मौकफ ये था कि जब अंग्रेज यहां से जाएंगे तो हम प्रिंसली स्टेट्स की एग्जिस्टेंस को भी खत्म करेंगे, बिकॉज दे आर फ्यूडल यू नो एंटिटीज, और इंडिया की जो प्रोग्रेस है इनटू नॉर्मल लिबरल किस्म की प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी को ये रोक रहे हैं। ये ना उनको राइट ऑफ वोट देते हैं अपने लोगों को, ना पढ़ाई लिखाई करने देते हैं। सो नो प्रिंसली स्टेट्स वुड बी अलाउड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। लेकिन अंग्रेजों ने फैसला किया कि ये अगर चाहें तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब आगे जरा सोचें, होता क्या है कि कांग्रेस ने जब देखा कि अब अंग्रेज ये पॉलिसी बना रहे हैं, तो उन्होंने जो स्टैंड लिया, और उसमें आपके प्रोफेसर हैं याकूब बंगश, उनकी किताब है प्रिंसली अफेयर, वो आप पढ़ लें। आई एम रिलाइंग ऑन बंगश साहब थीसिस। उन्होंने शो किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा था हम प्रिंसली स्टेट्स तो नहीं रहने देंगे, बट जो स्टेट्स विद इन इंडियन टेरिटरी आएंगी इस डिवीजन के बाद, उन पे हम कोशिश करेंगे कि वो इंडिया के साथ मर्ज कर जाए। लेकिन जो स्टेट्स पाकिस्तान की टेरिटरी में आएंगी, वी विल नॉट वांट देम टू कम इन। जिन्ना साहब ने, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन, वो साउथ इंडिया में ट्रेवनकोर एक थी स्टेट, रूलर भी हिंदू, पॉपुलेशन भी हिंदू, उसको कहा कि तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो। हैदराबाद का रूलर मुसलमान था और उसमें महल 18 या 19% मुसलमान थे, बाकी सारे वहां पे हिंदू थे, उसको भी कहा कि तुम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दो। और 2 स्टेट्स थी, बीकानेर और जोधपुर, जो सिंध और राजस्थान के बॉर्डर पे पाकिस्तान के हैं, बट रूलर हिंदू एंड पॉपुलेशन लार्जली हिंदू, 89%। उनको कहा तुम पाकिस्तान ज्वाइन कर जाओ। और अच्छा, ये सारा जब हो रहा था तो होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने बीकानेर के महाराजा को समझा दिया, देखो वी विल नॉट अलाउ दिस, तो वो तो ही बैक्ड आउट। जोधपुर को भी उन्होंने कहा कि इफ यू डू दिस वी विल यू नो टेक एक्शन, तो जोधपुर ऑल्सो बैक्ड आउट। जूनागढ़, इफ यू अगर इसके बाद डिस्कशन के ना जरा मैप देख लेना, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ पाकिस्तान के बॉर्डर से 200 किलोमीटर इंडिया के अंदर है, गुजरात पे, गुजरात काठियावाड़। मैंने पिछले दिनों इस पे भी कहीं बहस की थी, तो अगर फ्लाई करें ना आप कराची से टू जूनागढ़ सिटी, तो 370 किलोमीटर्स का फासला है, खासा फासला है, माइल्स का, सॉरी, खासा फासला है। हाँ? उसको, हाँ, वहां के जो रूलर थे वो मुसलमान थे, और वहां पे अबाउट 20-21% मुसलमान पॉपुलेशन थी, 89% या 90% हाँ हिंदू थी यार, आई मीन अबाउट दैट। वहां के जो दीवान थे ना, उनका नाम था नबी बख्श। नबी बख्श ने रिकमेंड किया कि आप इंडिया ज्वाइन कर लें बिकॉज वी हैव नो चांस। लेकिन नबी बख्श को पता नहीं साइडलाइन करके जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो को वहां पे बुला लिया और उनको दीवान बना दिया। उन्होंने सर जफरुल्लाह जो है,
की रिकमेंडेशन पे कहा कि आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लें। तो ऑन द 15th of September, the Nawab of Junagadh acceded to Pakistan. Sardar Patel then got in contact with the Pakistan government and told them कि देखो यार, first of all, it is deep into our territory. Second, if you let me hold a plebiscite here, and let's say what the people say. Jinnah Sahab kept quiet. Let me tell you one more thing, क्योंकि आपने वो जो ये जिन्ना अली किताब मेरी में है, बाकी चीजें और अगले एडिशन में मैं ये भी डाल रहा हूँ। 1st of November 1947 को Mountbatten, who was the Governor General of India only now after the partition, he sent a feeler to Pakistan कि आप जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद पे आप प्लेबिसाइड करवा लें। जिन्ना साहब केप्ट क्वाइट। फिर एक किताब है बाय K.H. Khurshid. Who was K.H. Khurshid? K.H. Khurshid was a young Kashmiri who applied for a job. ये जिन्ना साहब को किसी सेक्रेटरी की जरूरत थी। So 1944 he became Jinnah Sahab's private secretary, lived in his house in Malabar, Malabar Hill. और सितंबर 1947 यानी पाकिस्तान बनने के एक महीने बाद तक वो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी माई मेमोइर्स ऑफ जिन्ना। ये आप पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बाय द वे पब्लिश की है, पढ़ लेना। उसको K.H. खुर्शीद ने पब्लिश किया बिकॉज किसने यार, खालिद हसन ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो ब्रदर इन लॉ थे, साला थे इसके K.H. खुर्शीद थे। K.H. खुर्शीद डाइड इन अ बस एक्सीडेंट। हाँ जी, तो उनके जो नोट्स हैं वो फिर खालिद हसन ने पब्लिश किए ये किताब के। उसमें वो लिखते हैं कि आई टॉक टू चौधरी मोहम्मद अली। हु वाज चौधरी मोहम्मद अली? Chaudhry Muhammad Ali was a very close confidant of Jinnah and Liaquat Ali Khan. And Jinnah साहब ने उनको head of the Pakistan civil service bureaucracy का बनाया हुआ था। हर रोज जिन्ना साहब शाम को ना बुला लेते थे चौधरी साहब को और कहते थे कि सारे दिन में जो हुआ हमें बताएं। So he was so close to Jinnah. K.H. Khurshid says that I talked to चौधरी मोहम्मद अली कि भाई ये कश्मीर का क्या इशू है। उसने कहा देखें, दो सोर्सेज हैं। एक तो ये इस किताब का पहले सुन लें। वो कहते हैं कि दिसंबर में हमें इंडिया से पैगाम आया कि यू कीप कश्मीर बट डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस इन हैदराबाद। ओके, सो ही सेज आई वेंट टू जिन्ना एंड आई सेड कि जी ये आइए वहां से। एंड ही सेज मिस्टर जिन्ना did not seem to be interested. Jinnah, the great tactician, it seems, was playing for some higher stakes. Playing for some higher stakes तो आप समझते हैं ना अंग्रेजी, यानी जब आप गैम्बलिंग करते हैं तो आप वो एक बिड दे देते हैं और फिर आप चांस लेते हैं। What was that? उन्होंने ये कहा, सोचा होगा, जो मुझे समझ आती है, मेरी गैरिजन स्टेट किताब में भी मैंने ये शो किया है, कि इनका ख्याल था हमने ये जो मुजाहिदीन भेजे हुए हैं, हिंदू तो लड़ ही नहीं सकते, तो ये सारे जो खूनख्वार किस्म के ये वजीरी हैं और मसूद हैं, ये तो भगा देंगे इनको सारों को। और हुआ ये कि वहां पे लूटमार शुरू हो गई और ये बजाय श्रीनगर के जाने के, ये उससे पहले वो कौन सी जगह यार, वहां पे ये लूटमार करते रहे। तो एनी हाउ महाराजा ऑफ कश्मीर, इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। And there is no question that both the Indians and the Pakistanis wanted कि वो उनका रुख जो है या वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या इंडिया का बने या प्रो फ्रेंडली रहे। इन्होंने जब मुजाहिदीन भेज दिए वहां पे और वहां पे कत्लेआम शुरू हो गया, औरतें रेप हुई, ये सारा कुछ हुआ, तो जो वहां का महाराजा है उसने फिर इंडिया की हेल्प मांगी। इंडिया से फिर जो पैगाम आया, उन्होंने कहा पहले यू एक्सीड टू इंडिया, एक्सेशन बिल साइन करो, देन वी विल कम टू योर सपोर्ट। तो देन द महाराजा साइन द एक्सेशन बिल 26
October 1947 according to the Indians. We say 1 day later 27th. एक दिन का ही फर्क है. अब मसला ये है कि पाकिस्तान claims जूनागढ़. Why? Because the Nawab signed it. If that is true, then the Maharaja has signed to India. Kashmir तो वो मान लो. यानी you can't apply two principles in your argument ना. दोनों चीजें तो नहीं हो सकती. तो ये इसकी बैकग्राउंड है. हाँ, एक और भी है. चौधरी मोहम्मद अली की एक किताब भी है, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान. वहां वो लिखते हैं कि आई एंड लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर जो थे पाकिस्तान के, वी वेंट टू इंडिया, क्योंकि उस जमाने में पार्टीशन कमेटीज बनी हुई थी, तो ये उसके मेंबर्स थे. एंड आई थिंक दिस हैपेंड इन नवंबर 1947, जब माउंटबेटन की भी वो आई है ना. तो वो दे हैड गॉन टू दिल्ली फॉर नेगोशिएशंस. तो कहते हैं वहां पे सरदार पटेल ने हमें कहा, why do you keep talking about Junagadh? Let's do business on Kashmir and Hyderabad. लेकिन वो जब वापस आके उन्होंने जिन्ना साहब को बताया तो जिन्ना साहब was quiet. He was hoping कि कश्मीर तो हम जंग करके ले ही लेंगे, तो हैदराबाद को क्यों ना हम पंगा करें इंडिया के साथ. हुआ ये कि वो फिर जंग हुई और उस जंग में हम जीत नहीं सके. जितना कश्मीर हमारे पास उस दफा आ गया वो ही हमारे पास है, बाकी इंडिया के पास है. और हैदराबाद को फिर उन्होंने मिलिट्री एक्शन करके खत्म किया. नाउ कमिंग टू बलूचिस्तान. देखे 17 जून को मेरे ख्याल से या 27 जून का 1947 का बयान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कि जी प्रिंसली स्टेट्स की पोजीशन मुस्लिम लीग की ये है कि हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं and we will respect that. ये है 11th August 1947 को Khan of Kalat declared Kalat independent and Pakistan government accepted it. लेकिन जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई और ब्रिटिश निकल गए 14 और 15 की अगस्त की रात को, तो पाकिस्तान ने फिर कलात पे प्रेशर डाला कि नहीं तुम एक्सीड कर दो टू पाकिस्तान. और खान ऑफ कलात वाज नॉट विलिंग टू डू इट. लेकिन इन्होंने इतना प्रेशर डाला, हुआ यह था कि खान ऑफ कलात वाज द प्रिंसिपल बिग प्रिंसली स्टेट. उसके नीचे खरान और लसबेला और एक और भी थी. इन्होंने उनके खानों को कहा कि तुम तो पाकिस्तान को एक्सीड कर जाओ. जब वो एक्सीड कर गए तो खान ऑफ कलात वाज देन ऑल अलोन. फिर इन्होंने 1 अप्रैल, कुछ लोग कहते हैं 27 मार्च को मिलिट्री एक्शन किया. By that time, the Khan of Kalat had been, cajoled कहते हैं, उसे प्रेशर डाल के एक्सेशन बिल करवा लिया था. लेकिन उसके जो भाई थे प्रिंस करीम, उन्होंने रिवोल्ट भी किया. कोई जंग भी छोटी सी हुई, बट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तो जंग नहीं ना हो सकती. एक और बात है, बहावलपुर स्टेट जो है, उनके जो दीवान थे नवाब गुरमानी, उस जमाने में जो नवाब साहब खुद थे रूलर, वो यूके में थे. उन्होंने इंडिया को फीलर भेजा था कि वी वांट टू जॉइन इंडिया. द कांग्रेस डिडंट एक्सेप्ट इट क्योंकि दे हैड कम टू द आइडिया. ये अब मैं बंगश की बात कर रहा हूँ किताब की, ये मेरी रिसर्च नहीं है, बट आई एम रिलाइंग ऑन हिज रिसर्च. वो कहते हैं कि द इंडियंस डिडंट एनकरेज बिकॉज Bahawalpur state was on the border with India, but all of it was in Pakistan territory, so they didn't accept it. बाद में फिर जब पता लगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि 15 अगस्त को बहावलपुर ने भी इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था. जस्ट इमेजिन. तो इन्होंने फिर प्रेशर डाला उस पे कि तुम एक्सीड करो. और गुरमानी जो पहले इंडिया को फीलर जा रहे थे, उन्होंने फिर रूलर को कहा होगा कि यार नहीं वी हैव नो चांस, तो फिर ये पाकिस्तान ज्वाइन कर गए. ये है बैकग्राउंड. आपको मैंने वहां का बलूचिस्तान का भी केस समझा दिया. थैंक यू सो मच सर. बहुत तफसील में आपने बहुत सारी बातें जो मुझे भी नहीं थी पता, हालांकि मैंने बहुत सारे सेशन अटेंड किए आपके, लेकिन ये बहुत सारी बातें मुझे पता चल गई, तो थैंक यू फॉर दैट. बाकी हमारा जो टाइम था वो भी ऑलमोस्ट पूरा है, तो एनीवन इफ हैज एनी क्वेश्चन, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे. अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. फरवा का जो है इंटरनेट का मसला है, वो बोल नहीं सकती, तो वो कह रही है कि I can see her now. I can see her now. I'm sorry. चलो.
I think अच्छा किसी का कोई सवाल मेरे ख्याल में अच्छा नूर has a question. Please unmute yourself, Noor. जी This is the अस्सलाम last. वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, बोलें आप। Sir, my quick question था about everything that you just shared. कि again, this probably ties into the myths that you were referring to, जो हमें पढ़ाई जाती हैं. मगर जो जिना की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की स्ट्रगल के बारे में इतना एम्फसाइज किया जाता है पाकिस्तान में, और कहा जाता है कि it was only after trying for a very long time to have Hindus and Muslims on the same page, united under one nation, did Jinnah realize that that was not actually a possibility, and hence why he said कि separate country करनी पड़ेगी. उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कमेंट करते हैं. थैंक यू. हाँ, नहीं, जो मेरी किताब है ना, उसमें मैंने 4 फेजेस जिन्ना साहब के रखे हैं. ये भी मैंने आज तक किसी स्कॉलर को नहीं देखा. ये बड़े बड़े नाम जो हैं, इनको पूछो ये कहाँ पे रिसर्च करते हैं. मैंने कहा जिन्ना साहब की 4 जिंदगी के फेज हैं. पहला फेज है जो आप बता रही हैं, इंडियन नेशनलिस्ट. 1906 में जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो उससे पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी. उस दौरान में ये बॉम्बे के तो पॉलिटिशियन थे ही, इन्होंने उसके खिलाफ बोला. फिर जब मुस्लिम लीग बनी तो उसको भी कंडेम किया. और जब ये शिमला डेपुटेशन गया था अक्टूबर 1906 में, उसको भी कंडेम किया और कहा कि ये इंडियन यूनिटी के खिलाफ मूव्स हैं. तो डेफिनेटली जिन्ना साहब एट दैट टाइम वाज अ थॉरोब्रेड इंडियन नेशनलिस्ट. और जिन्ना साहब की अचीवमेंट जो थी वो लखनऊ पैक्ट था. लखनऊ पैक्ट में क्या उन्होंने एग्री कराया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें ऑल इंडिया, ये असल में ही जॉइंड ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906, और 1913 में ही जॉइंड द मुस्लिम लीग एंड रिमेन्ड इन बोथ पार्टीज. May I tell you that the Congress encouraged him to join the Muslim League. ये नहीं ना बताते. वो क्यों? क्योंकि मुसलमानों की सारी लीडरशिप को सर सैयद ने कहा था कि कांग्रेस से दूर रहो और अंग्रेजों के साथ रहो. तो जब जिन्ना साहब कांग्रेस के लीडर, मुस्लिम लीग के लीडर भी बने, तो कांग्रेस ने उसको वेलकम किया कि आप हम दोनों को अब कोशिश करें कि इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ले आए. और जिन्ना साहब की जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी मैंने तारीफ की है, वो है द लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट में द कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टेड्स फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस, यहाँ पे जहां पे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, वहां पे डबल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने मुसलमानों को दे दी. मसलन यूपी की पॉपुलेशन मुसलमानों की थी 14%, वहां पे इनको 30% मिल गया. मद्रास में मुसलमानों की पॉपुलेशन थी 7%, वहां पे 15% इनको मिल गया. बॉम्बे में 20% थी, वहां पे 33% मिल गया. लेकिन 2 मुस्लिम प्रोविंस जो थे, बंगाल और पंजाब, पंजाब में मुसलमानों की पॉपुलेशन थी 56%, उसको उन्होंने 50% कर दिया टू कॉम्पेंसेट, और वहां पे हिंदुओं और सिखों को जरा वेटेज दे दिया. बंगाल के अंदर ये था वेरी इंटरेस्टिंग कि 1916 तक बंगाली मुस्लिम्स और 52% ऑफ द बंगाल पॉपुलेशन. लेकिन क्योंकि राइट टू वोट वाज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड एजुकेशन, तो ईस्ट बंगाली मुस्लिम्स बेचारे बहुत बैकवर्ड थे, तो इनको सिर्फ 10% रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली मिला करती थी. आफ्टर द लखनऊ पैक्ट वो भी 40% हो गई, नॉट 52% बट 40%. तो ये जिन्ना साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी. लेकिन होता ये है कि इसके बाद अंग्रेजों की शरारत होती है, और वो है राउलेट एक्ट्स ऑफ 19 फरवरी 1919 में महल ले आते हैं. वो हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तानियों ने मिलके, सब ने डोनेशन दी, ये की, ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट किया था. लेकिन एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि सेल्फ रूल की तरफ कोई नया रिफॉर्म आएगा. इसके बरक्स दे ब्रॉट इन राउलेट एक्ट which gave the government the right to arrest people without proper, वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, शक के ऊपर ही.
तो इसके ऊपर फिर बहुत शोर मचा, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, और जिन्ना साहब की जो स्पीच है इंपीरियल असेंबली में वो बहुत कंटेम्पचुअस है ऑफ द ब्रिटिश. सो डेफिनेटली जिन्ना साहब वाज अ थॉरोब्रेड इंडियन नेशनलिस्ट. झगड़ा कहाँ पे शुरू होता है? बात यह है कि इसके बाद अपना ये हो गया जलियांवाला बाग, इसके बाद खिलाफत मूवमेंट आई, और खिलाफत मूवमेंट पे पाकिस्तान में बहुत झूठ बोला जाता है कि जिन्ना साहब उसके खिलाफ थे. मैंने कहा बिल्कुल बकवास है. जिन्ना साहब की ये 1919 में मुस्लिम लीग के डेपुटेशन के साथ गए थे इंग्लैंड में खिलाफत उस्मानिया का केस लड़ने के लिए, और 1920 में इनका बयान मैंने कोट कर दिया. अब उसके बाद चुप हैं सारे कि फर्स्ट दे टूक अवे आवर लिबर्टी, यानी राउलेट्स एक्ट लाए हैं, एंड नाउ दे वांट टू टेक अवे आवर रिलीजन बाय अबॉलिशिंग द खिलाफत. इससे ज्यादा कांग्रेस के हक में क्या, खिलाफत के हक में क्या वोट होगा? झगड़ा कहाँ पे बनता है? जो मुस्लिम आए थे ना इस खिलाफत मूवमेंट में, दे वांटेड टू गो आउट इन द स्ट्रीट्स एंड प्रोटेस्ट कि ये खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े ना करो. वो जिन्ना साहब नहीं थे करना चाहते. He was not willing to go out and confront the British in the streets. They then went to Gandhi ji, and Gandhi ji was waiting कि यार ये 1909 एक्ट के बाद अंग्रेजों ने ये जो तुरुप चाल चली है कि मुसलमान फ्रीडम स्ट्रगल से बाहर कर दिए, अगर हम इनका इस इशू में सपोर्ट करते हैं और हिंदू मुसलमान यूनिटी हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ा गेन है. तो इन गुड स्पिरिट ही सपोर्टेड इट. The Muslims came to Gandhi. Gandhi didn't go to the Muslims. यार कोई अकल करो, कभी तो सच बोला करो. तो गांधी जी ने फिर उसको सपोर्ट किया and he took it out in the streets. वहां पे जिन्ना एंड गांधी का क्लैश होता है. जिन्ना is opposed. अब आप ये कह सकते हैं यार, let me give an example जो पाकिस्तान में हो रहा है. दो मौक़िफ़ हो सकते हैं कि यार ठीक है हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं मानते लेकिन हम सिर्फ पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे. दिस इज वन मौक़िफ़. एक और मौक़िफ़ है कि हम स्ट्रीट्स में चले जाएंगे. फजलुर रहमान कभी पीएमएल ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आज से 10 साल पहले बाद में पता लगेगा इनमें से कौन सा मूव बेहतर है. तो जो लोग चाहते थे कि भी अंग्रेज एक स्पीच के बाद तो ऑटोमन एम्पायर को नहीं ना रिस्टोर कर देंगे या उसकी डिसमेंबरमेंट नहीं रोक देंगे, लेट्स टेक द डेमोन्स्ट्रेशंस टू द स्ट्रीट. दे वर इक्वली राइट. लेकिन अंग्रेजों ने फिर इन सबको, महात्मा गांधी को 6 साल कैद हुई थी उसके ऊपर, जो बाद में रिड्यूस हो गई, बट दैट्स द फर्स्ट टाइम ही वेंट टू जेल. जिन्ना साहब केप्ट आउट ऑफ इट. जिन्ना उसके बाद उसे क्या कहते हैं यार, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने सितंबर 1920 में शुरू कर दी कि वी विल सरेंडर ऑल ब्रिटिश टाइटल्स. उनकी नौकरियां खत्म कर दो, ब्रिटिश गुड्स हम नहीं खरीदेंगे, हम अपने बनाए हुए खरीदेंगे. हाँ जी. तो उसके ऊपर फिर जिन्ना साहब ने नागपुर 1920 में उस कांग्रेस को कहा कि मैं इनके साथ नहीं रह सकता. वहां पे थोड़ी बदतमीजी भी हुई थी जिन्ना साहब के साथ, क्योंकि जब ये तकरीर करने लगे तो इन्होंने मिस्टर गांधी कह दिया और मिस्टर मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को. तो जो गांधी के सपोर्टर थे क्या उन्होंने कहा नहीं नहीं महात्मा गांधी कहो, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लोगों ने कहा नहीं नहीं मौलाना कहो. तो उन्होंने कहा नहीं मैं मिस्टर ही कहूंगा. खैर उसके बाद झगड़ा हो गया. नई नई उनकी शादी हुई थी, वो अपनी दुल्हन को लेके वहां से जिन्ना साहब बाहर आ गए, एंड दैट्स व्हेन ही लेफ्ट द कांग्रेस. उसके बाद 17 years ही वाज इनटू, वो मैं कहता हूँ मुस्लिम कम्युनिटेरियनिज्म, जहां पे उनकी कोशिश ये थी कि सेपरेट इलेक्टेड्स भी मुसलमानों के पास हों और सारी पावर जो है प्रोविंसेस में हो, सेंटर के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन ऑफिस, फॉरेन अफेयर्स और सम अदर थिंग्स. द कांग्रेस पोजीशन वाज कि अ कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया विथ ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज, एंड टू मॉडर्नाइज इट, टू एजुकेट इट, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इनका झगड़ा बेसिकली हुआ कि फेडरेशन की नेचर क्या होगी. उसके बाद जब 1935 एक्ट आया और नेहरू की वो है कि हम सोशलिस्ट इंडिया बनाएंगे और जिम्मेदारी खत्म कर देंगे, वहां से फिर जिन्ना साहब मुस्लिम सेपरेटिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म
के चैंपियन बने और उन्होंने खुद कहा कि मैं आज से कम्युनलिज्म यानी एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम कैंपेन शुरू करूंगा। ये बैकग्राउंड है यार। मेरी किताब पढ़ो यार प्लीज, फॉर गॉड से। इतनी मुझसे तुम बातें करते हो, कोई किताब खरीद के क्यों नहीं पढ़ते हैं? नाउ आई थिंक इन लोगों को, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं था पता बुक का, तो मेरे ख्याल में आज उनको आइडिया हो गया। यार बात तो सुनो, वो एक मिनट ठहरो जरा, लेट मी डू सम। ये है किताब, ये वैनगार्ड बुक्स लाहौर वालों ने पब्लिश की है। कीमत उन्होंने ज्यादा रखी है यार। ऑथर को तो बेचारे को हर बंदा बस यूं ही है। ये सारा कुछ सेठी साहब की इन्वेस्टमेंट है और वही उसका फायदा उठाएंगे। मुझे कोई रॉयल्टी जब मिलेगी देखी जाएगी, और वो छोटी सी होती है। कीमत मैंने नहीं रखी, ये है, ये आप सब पढ़े। I'll share the link in the अगर group कि आपके आप साथ लोग कोई इंडियन भी आपके दोस्त हैं तो वो भी ये देख लें। ये इंडिया में भी छपी है, वहां पे इसकी कीमत महल 900 रुपये है, हमारे यहाँ शायद 3000 है या कुछ है। पाकिस्तान के रुपए की तो वैल्यू भी बहुत कम हो गई हुई है ना, तो वो रफली उतना ही बन जाता है। और लेकिन मैं कहता हूँ पंजाबियों का, पख्तूनों का मुझे नहीं पता, ये घर बुला के आपको 5000 का खाना खिला देंगे, 5000 की शराब पिला देंगे, किताब आपकी नहीं खरीदेंगे। ये है हमारा कैरेक्टर। That's true. हाँ जी। अच्छा जुबैर, यू आर देयर। अच्छा अच्छा अच्छा। I'm watching it. Yeah, nice to see you. Lovely to see you. Thank you. Thank you, sir. I think we should conclude now because our designated time is over. तो मेरे ख्याल में जो आपने आज पर्सपेक्टिव पेश किया, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें, मुझे इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सीखने को मिली। और जो हमें एक डोमिनेंट स्टेट नैरेटिव पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, या जो मीडिया के जरिए सब कुछ उसके जरिए, तो वो उसको चैलेंज करने के लिए मेरे ख्याल में इस तरह की थॉट्स, इस तरह के सेशंस बहुत जरूरी हैं, सो दैट न्यू पीपल कैन रीथिंक व्हाट वी हैव बीन टॉट एंड वी कैन बेटर थिंक अबाउट फ्यूचर एंड प्लान थिंग्स फॉर अ बेटर पाकिस्तान, जो हमारे लिए बन चुका है उससे बहुत अच्छा। जी सर। एक मेरा पॉइंट है कि मैं उनमें से नहीं जो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोबारा एक हो जाए। मैं कहता हूँ हिस्ट्री ने फैसला कर दिया है, लेकिन अमन से रहना, कोऑपरेट करना, ये हमारे बस में है। दैट इज द ऑप्शन आई एम इन फेवर ऑफ। तो ये भी ना हो कि लोग कहें यार ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिस्ट्री में मुल्क ऐसे ही बन जाते हैं, कई दफा फैसले इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो फैसला हो गया है वो अब हमारे साथ है, सो इट्स ऑल राइट। लेकिन आपके पास सारी हकीकत है अब। तो थैंक यू वेरी मच। ये यार इसकी वीडियो मुझे भेज देना तुम, है जी सर। I'll जो सारी रिकॉर्डिंग है ना, ये वीडियो भेज दो, ये मैं यूट्यूब पे फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, उसने क्या कहा है इरम गुल साजिद, कोई पैगाम है इन लोगों के? मैंने तो वो चैट्स है ना वहां पे देख, तो आई ऑल्सो उन्होंने लिखा है। ठीक है ठीक है। ये आप मेरी किताब लोग पढ़े ना यार। ठीक है, बड़ी मेहरबानी यार। आई एंजॉय टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। अब तो मैं ये बता के मेरी इतनी रवानगी हो गई है, मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही सारा कुछ आराम से हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। टेक केयर। Thank you very much. Thank you. Take care all. थैंक यू जी, टेक केयर जी, ऑल द बेस्ट।